His tabernacle, which is the Holy Spirit's dwelling place. उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। आप वहीं पर है, देखिए ठीक है कि उसके नाम उसे उपनाम दिया, उसका तंबू जो कि पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। To make it a place in Rome, a Vatican City. रोम में इसे एक स्थान बनाए, एक वेटिकन नगर। You just go on down, and then to dwell in heaven. आप आगे बढ़ते रह सकते हैं और वे जो स्वर्ग में रहते हैं Blaspheme them by saying they were intercessors. उसकी निंदा की ये कहने के द्वारा कि बिचवाई करने वाले थे। And it was given unto him to make war with the saints, and he did. And to overcome them, he did. और उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, और वो लड़ा और उन पर जय पाए, वो हुआ। Burned them to the stake, fed them to the lions, and killed them any way he could. उन्हें अग्नि दंड दिया, उन्हें सिंहों को खिला दिया और उन्हें किसी भी प्रकार से मार डाला जैसे वो मार सका। And power was given to him over all kindreds, tongues, and nations. और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। It never did become that way in Rome until pagan Rome was converted into papal Rome, and the Catholic power spread the world. Amen. Made the universal Catholic Church. और इस प्रकार से रोम में कभी नहीं हुआ जब तक कि पागान रोम पापल रोम में नहीं बदल गया और कैथोलिक की सामर्थ संसार में फैल गई और विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया बन गई। And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book. Touch not my oil and wine. पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरे तेल और दाखरस को नहीं छूना। समझे? All that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man has an ear, let him hear. पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and faith of the saints. जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। Now we had him coming last night with his great sword to kill. We find out that he gets killed with the sword too. The sword of the word. God's word, sharp two-edged sword. Slays him, puts him right down. अब हमारे पास वो आ रहा है गत रात्रि अपनी बड़ी तलवार के साथ मारने के लिए। हम पाते हैं कि वो तलवार से भी घात करता है, वचन की तलवार से। परमेश्वर का वचन तेज दोधारी तलवार उसे घात करता है, उसे नीचे गिरा देता है। Wait till them seven thunders utter their voices to that group who really can take the word of God and hand it there. It'll slice and cut. They can close the heavens. They can shut this or do that, whatever they want to. You'll be slayed by the word that proceeds from his mouth is sharper than a two-edged sword. उन 7 गर्जनों के शब्द देने तक प्रतीक्षा करें, उस झुंड की जो वास्तव में परमेश्वर का वचन ले सकते हैं और वहाँ दे सकते हैं। ये छांटेगा और काटेगा, और वे आकाश को बंद कर सकते हैं। वे इसे कर सकते हैं या वो करते हैं। वे जो भी चाहते हैं, महिमा हो, वो वचन के द्वारा घात किया जाएगा जो उसके मुख से निकलता है, दोधारी तलवार से अधिक तेज है। They could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. Whatever they say is going to happen because it's a word of God coming from the mouth of God. Amen. God always is His word, but He always uses man to work it. वे लाखों करोड़ों टन मक्खियां बुला सकते हैं यदि वे चाहें तो। आमीन। वे जो भी कहते हैं घटित होने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से आ रहा है। जी हाँ, आमीन। परमेश्वर सदा ये उसका वचन है, परंतु वो सदा मनुष्य का उपयोग करता है कि इसे करे। God could call them flies down at Egypt, but He said, Moses, that's your job. I'll just tell you what to do, and you go do it. He fully done that. परमेश्वर उन मक्खियों को बुला सकता था वहाँ मिस्र में, परंतु उसने कहा, मूसा, ये तेरा कार्य है,
बस मैं तुझे बताऊंगा कि क्या करना है और तुझे ये करना है। उसने ये पूरी रीति से किया। See, he could have chosen the sun to call him. He could cause the moon to call it or the wind to call it. But he said Moses. He chose his man. समझे, वो उन्हें बुलाने के लिए सूरज को चुन सकता था, उन्हें बुलाने में चांद कारण हो सकता था या वायु उसे बुलाने को, परंतु उसने कहा मूसा, जो उसने अपना मनुष्य चुना। All right. Now we find out here that this Satan, after being kicked out of heaven, incarnates himself in the beast, and now he is a beast. Antichrist, false prophet, and now beast, and given the name of death, and hell follows him. Fully Satan on his throne. Oh my. ठीक है, अब हम यहाँ पाते हैं कि ये शैतान जब इसे स्वर्ग से लात मारकर निकाल दिया, इसके बाद स्वयं को पशु में अवतरित कर लिया। अब वो एक पशु है, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, और अब पशु और मृत्यु नाम दिया गया और नरक उसके पीछे है, अपने सिंहासन पर पूरी रीति से शैतान। ओ प्रभु, on the earth, he's Satan representative on the earth, that he now is head of the kingdoms of the world, the very same kingdoms that he offered to the Lord Jesus in Matthew 4. Satan now becomes a full king. पृथ्वी पर वो शैतान है, प्रतिनिधि पृथ्वी पर, कि वो संसार के राज्य का प्रधान है, वही राज्य जो उसने प्रभु यीशु को प्रस्तुत किए। मत्ती 4। अब शैतान पूरा राजा हो गया।